Good evening, friends. ICA Manoj Lamba welcomes you all on this very special webinar on transforming tax audit with artificial intelligence, a deep dive with Chat GPT. Friends, am I audible properly? Please tell me by writing in the chat box. Thank you. Friends, before I start my deliberations on this very important topic, my humble request, my hand-folded request to all of you, please participate in this discussion through chat box. Ask anything you want to ask by writing in the chat box so that we can learn new things today. At the end of session, we will really feel a difference in how we are doing the traditional audit and how we can change our practice by adopting AI in audit practice. So friends, may I want your kind permission to start the deliberations? Friends, how many of you feel that AI will abolish your practice? Now, all the audits in the times to come is performed through AI. There is no human intervention in audit, and audit AI will replace the traditional audits. How many of you think the same? I have created a poll for you. Please give your answer true and false. 80% of people present here are saying 80% of people are saying that this statement is false. AI is not going to replace us, but we have to change our style of practice. We have to use technology in our practice. हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा. अब दोबारा सेम क्वेश्चन एक और पोल में कंडक्ट करता हूं और आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि एआई का प्रयोग कर हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं? प्रैक्टिस हमारी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ना कि खत्म होगी. कितने लोग ये सोचते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए. नाइन्टी 1% of people present here are saying कि AI से हम अपनी प्रैक्टिस को ईज कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. कितने लोग ये मानते हैं कि अब हमारी प्रैक्टिस की बाउंड्रीज हमारे शहर की सीमा नहीं है? नाउ वी आर ए ग्लोबल प्रोफेशनल. वी कैन प्रोवाइड audit services whole to the whole of the world by using this AI. How many of you? I am creating another poll for you.
Yes, please. Only 8 participant has replied to this query only. बाकियों को क्या लगता है? 100% of participants are saying that if we can scale our practice to a global level by using AI in practice. So friends, that's why I have decided to implement artificial intelligence in my practice from today onwards. I have decided. What do you think? Give your answer by writing in the chat box. मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि एआई को यूज करूंगा और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाऊंगा। आज के बाद हर काम एआई की मदद से करूंगा। कुछ मैं ह्यूमन इंटरवेंशन अपने ऑफिस से खत्म कर दूंगा, अपने दफ्तर से खत्म कर दूंगा। कितने लोग ये सोचते हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम नॉट कंडक्टिंग द पोल नाउ, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Aditya Singhal is saying just now. What other things? Manual intervention will be there. Manual intervention नहीं होगी सर, अभी हम प्रूव करेंगे. We have to learn application of AI tools in better manner lawfully. Yes, yes, just now. Yes, we will. Everyone is giving its own reply. हर आदमी अपना रिप्लाई दे रहा है. फ्रेंड्स, अब एक नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ रहा है कि ये चैट जीपीटी है क्या, ये बार्ड है क्या, ये मेटा एआई है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गूगल एंड एआई? गूगल और एआई में क्या फर्क था? गूगल तो बहुत सालों से था. व्हाट इज एआई? एआई इज ए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी. एआई इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. And chat GPT, by using this artificial intelligence, is generating anything for you. गूगल आपको क्या करता था? गूगल जो ओपन सोर्सेस पे डाटा अवेलेबल था वो डाटा आपको दे देता था. चैट जीपीटी ये नहीं कर रहा. चैट जीपीटी उस डाटा पे रिसर्च करता है, उस डाटा पे एनालिसिस करता है और आपको नया सा नया रिप्लाई जनरेट करता है. चैट जीपीटी आपको नया से नया रिप्लाई जनरेट करके देता. माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इसके कुछ एग्जांपल देने वाला हूं आपको कि चैट जीपीटी से आप क्या कर सकते हैं. तो चैट जीपीटी आपका जो ऑडिट आप मैनुअल करते थे, जो भी आप काम मैनुअल करते थे, वो आपसे के लिए करेगा. आपसे कई गुना कम समय में करेगा और आपसे कई गुना अच्छे से करेगा. ये मैं ऑनलाइन आपको प्रूव करूंगा सर. मैं ऑनलाइन आपको प्रूव करने वाला. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. अब क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, टैक्स ऑडिट जीपीटी. You are seeing on your screen tax audit GPT. Now the people generally ask कि भैया चैट जीपीटी और टैक्स ऑडिट जीपीटी में क्या फर्क है? अभी आपने इंस्टीट्यूट में देखा कि सीए जीपीटी निकाल दे, स्टूडेंट के लिए अलग आईसीआई स्टूडेंट जीपीटी निकाल दे. देयर आर सो मेनी जीपीटी हैव नाउ कमिंग इनटू द मार्केट. I have developed, being a chartered accountant, a new utility for you, all of you, my professional brothers and sisters. That utility is called Tax Audit GPT. Tax Audit GPT. This is the first start by me. I have developed my own Tax Audit GPT. अब लोग दूसरा सवाल मेरे से ये पूछते हैं कि भैया आम चैट जीपीटी और लांबा जी वाली टैक्स ऑडिट जीपीटी में क्या फर्क है? सर, बहुत अच्छा सवाल है, पूछना भी चाहिए, जायज सवाल है. सर, जो चैट जीपीटी है वो सिंपल जीपीटी है.
वो वर्ड में जितना भी डाटा पड़ा है उसको एनालाइज कर रही है और आपको ड्यूटी दे रही है। टैक्स ऑडिट एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक काम है, एक स्पेसिफिक टास्क है जिसके लिए हमें स्पेसिफिक रिसर्च और एनालिसिस करना है। तो मैंने क्या किया, इस टैक्स ऑडिट जीपीटी को डेवलप करने के लिए जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जैसे सेक्शन 44AB, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CDB, इस पे टैक्स ऑडिट पे जो टैक्स लॉस है, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट, आईसीडीएस का टेक्निकल गाइडेंस नोट, मोस्ट कॉमनली फाउंड मिस्टेक्स इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट issued by the TAQRB, everything which is available with regard to tax audit and prepared by ICI, I linked all these databases to my GPT. Beside that, some of the balance sheets, some of the my sample audit reports, some of the qualified audit report, and many other more things I have embedded and integrated into my customized GPT. My customized GPT. That's why simple chat GPT is giving simple replies, which may be wrong, which may be right. But I will assure you one thing, my tax audit GPT will give you more specific to the point legal replies. Getting my point, my dear friends? मेरी जीपीटी और सिंपल चैट जीपीटी में क्या फर्क है, ये आपको समझ आ गया सर? टैक्स ऑडिट जीपीटी को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सभी लोग? मेरी जीपीटी और टैक्स ऑडिट जीपीटी में क्या फर्क है, ये फर्क आपको समझ आ गया या नहीं सर? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, तब आगे बात करते हैं। यस, प्लीज टेल मी by writing in the chat box. Have you got an idea what is the difference between simple GPT and specific customized GPT developed by me, that is tax audit GPT? Have you got an idea? Yes, please tell me by writing in the chat box. Yes, and start its application. Yes, I am starting now. Getting my point. अब चैट जीपीटी में सारा खेल जो है सर प्रोम्प्ट का है। प्रोम्प्ट का है सर। जैसे मैंने इसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा पहले, व्हाट इज द ऑडिट प्रोसेस अंडर सेक्शन 44AB? And it start giving reply to you. Just a bit, there is some problem in internet connection. Yes. Now it start giving reply. You are seeing this reply on your screen. आपने इसे एक सिंपल सवाल पूछा है कि टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, कैसे करना है, इसने सारा कुछ जवाब दे दिया। Getting my point? You are seeing on your screen. इसने क्या किया सर? इसने आपको बताया कि टैक्स ऑडिट किन लोगों पर एप्लीकेबल है। पहले इसने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा पे और प्रोजम्पटिव स्कीम से बरी करते हैं। फिर अपॉइंटमेंट होनी जरूरी है। अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? सीए की अपॉइंटमेंट हो सकती है जो प्रैक्टिस पे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया है जो उसका ट्रू एंड फेयर व्यू पर अपनी ओपिनियन देनी है। फिर आपको फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD जो आप पर एप्लीकेबल है उसकी रिपोर्ट देनी है। फिर ये बनाने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता, फिर इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना है। अगर नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रिप्लाई क्या है? इसने बताया कि सेक्शन 271B है जिसमें 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 तक आपको पेनल्टी लग सकती है। और इसके बाद भी कोई गलती है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई एरर फाइंड है, कोई केस स्क्रूटनी में लग सकता है, तो आपको डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी और अपनी रिपोर्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा एक छोटा सा सवाल मैंने किया और इसने कितना डिटेल्ड रिप्लाई दिया। पहला क्वेश्चन आपने देखा सर,
अब आप बताइए कोई क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपका क्वेश्चन यहां पे पेस्ट करूंगा और उसका रिप्लाई लेके दिखाऊंगा। सर प्लीज स्टार्ट, write any question you want to write with regard to tax audit under section 44AB. Write your specific query. I will give detailed reply through my tax audit GPT. लिखिए अपना कोई क्वेश्चन, जितने लोग प्रेजेंट है, क्लोज 44 ऑफ फॉर्म 3CD। अब देखिए कैलाश जी, यहां पर आपने क्या लिखा, क्लोज 44 सेग्रीगेशन ऑफ जीएसटी एक्सपेंसेस। यहां पर सारा खेल क्या है अनूप जी, 43BH पे बात हो रही है, 34A पे कह रहा है, सेग्रीगेशन पे कह रहा है, एमएसएमई की क्लोज 22 पे कोई कह रहा है, क्लोज 44 पे कह रहा है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा सर प्रॉम्प्ट मैजिक। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे, जितना ज्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे, उतना रिफाइंड, उतना ऑथेंटिक, उतना एक्यूरेट जवाब आप पाएंगे। इट इज द गेम ऑफ योर प्रॉम्प्ट। अब 44AD के रिगार्डिंग ही मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूं। प्लीज एक्सप्लेन द क्लोज 44 ऑफ फॉर्म नंबर number 3CD with respect to income tax audit under section 44AB of Income Tax Act. Give your detailed reply with by reading ICI guidance note on tax audit. मैंने क्या किया सर, मैंने अपने प्रॉम्प्ट को डिटेल्ड करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने डिटेल्ड किया, देखिए क्या होता है। सर आया कुछ मजा? पहले तो बताइए, क्या क्लोज 44 पर जो आपको टैक्स ऑडिट जीपीटी ने जवाब दिया उसमें आपको मजा आ रहा है? मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था, इसने बताया कि क्लोज 44 क्या है, इसने बताया क्लोज 44 में क्या रिक्वायर्ड है, आईसीआई का गाइडेंस नोट क्या कहता है, हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, क्या वेरिफिकेशन करना है, क्या रिपोर्टिंग करना है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? आपने रिप्लाई देखा सर? कुछ मजा आया? विद इन 30 सेकेंड यू गेट द डिटेल्ड रिप्लाई। कुछ आया आनंद सर? अब मैं इससे आगे पूछता हूं, रुक जाइए, अब आगे पूछते हैं कि सर व्हाट डॉक्यूमेंट्स द टैक्स ऑडिटर has to examine with regard to audit of clause 44
of Form 3CD. Provide me most detailed checklist for the same. देखिए सर, देखिए सर, इसने क्या दिया आपको? आपको बताया सारा। परचेज इनवाइसिस, परचेज इनवाइसिस में क्या देखना है? वेंडर मास्टर डाटा, वेंडर मास्टर डाटा में क्या देखना है? एक्सपेंडिचर लेजर्स, एक्सपेंडिचर लेजर्स में क्या देखना है? जीएसटीआर रिटर्न 2A 2B 3B में क्या देखना है? कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट विद सप्लायर्स में क्या देखना है? एक्सपेंसिव वाउचर्स में क्या देखना है? बैंक अकाउंट्स में क्या देखना है? सप्लायर कम्युनिकेशन में क्या देखना है? इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम में क्या देखना है? ऑडिट ट्रेल एंड ट्रांजैक्शन में क्या देखना है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है? और आईटीसी की वेरिफिकेशन कैसे करनी है? और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन सप्लाईज के लिए आपने क्या देखा है? विद इन जस्ट 30 to 40 सेकेंड can you expect this kind of reply from Tax Audit GPT? क्या गेट कर सकते हैं आप इस तरह का रिप्लाई? सोच सकते हैं इतना डिटेल्ड रिप्लाई? फ्रेंड्स, समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? आगे चलते हैं, 44 पे ही रिसर्च करते हैं। पहले 44 का मुद्दा उठा दिया, 44 में ही मैं बात करूंगा। दूसरी चीज थी मेरी, व्हाट इज वेरिफिकेशन process for tax auditor while auditing clause 44 of Form 3CD? सर देखिए, वेरिफिकेशन ऑडिटर को करना क्या है, इसका ऑडिट करना कैसे? देखिए सर, review the business model, identify common supplier, getting relevant documents, क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करनी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, एक्सपेंडिचर को कैसे क्लैरिफाई करना है, रिकंसिलेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होनी है, आईटीसी का इनपुट क्रेडिट कैसे चेक करना है, एग्जेम्प्ट ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑफ एक्सपेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन विद बैंक स्टेटमेंट कैसे करनी है, इंटरनल कंट्रोल कैसे असेस करने हैं, वैलिडेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज कैसे करना है, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या करने हैं। देखिए सर, just in 30 seconds again you will get everything how to verify clause 44 of Form 3CD. and now अब मैं 3CD से पूछता हूँ रिपोर्ट कैसे करना है सर। चैट जीपीटी से पूछना रिपोर्ट कैसे करना है, हाउ टू रिपोर्ट ऑन क्लोज 44 of Form number 3CD. क्लोज 44 में 3CD के रिप्लाई कैसे करना है सर? देखिए प्लीज, देखिए टेबल और फॉर्म में आपको बता रहा है क्या मांगता है ऑब्जेक्ट क्लोज 44। इसके लिए क्या क्या चेक करना है, क्या डिस्क्लोजर करना है, डिजिटल फाइलिंग कैसे करनी है, वर्किंग पेपर कौन से मेंटेन करने हैं और किस तरह से करना है, ये एग्जाम्पल से आपको बांट के बता भी रहा है। देखिए ब्यूटी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, और so fast, just in a fraction of seconds, it will giving reply to you on 44. Hope you enjoying this session and learning new things. कुछ मजा आ रहा है सर?
चैट बॉक्स में लिख के बताते रहिए सर। कुछ आनंद आ रहा है सर? अब आप कह रहे हो मेरे को क्वालिफाई करना है, भैया मेरे को तो ऑब्जर्वेशन लिखनी आती नहीं क्योंकि हमने कभी क्वालिफाई किया ही नहीं। मेरे को कुछ मॉडल ऑब्जर्वेशन दो, मेरे को कुछ रिपोर्टिंग दो। ये भी पूछते हैं। क्लोज 40 प्लीज प्रोवाइड मी 10 सैंपल observation. Please provide me 10 sample observation oblique comments oblique qualifications oblique opinion on auditing of clause 44 of form number 3CD. Yes, please. देखिए सर मैजिक, देखिए देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद रिगार्ड टू क्लोज 44 ये आपको दे रहा है सर। 10 मांगी 10 दे दी, 20 मांगोगे 20 दे देगा, स्पेसिफिक मांगोगे स्पेसिफिक दे देगा। ये तो क्या हुक्म है मेरे आका, जो हुक्म करोगे सर। आपका आर्टिकल, आपका स्टाफ, आपका असिस्टेंट, आप खुद जो काम नहीं कर पा रहे थे, जस्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जस्ट विद ए क्लिक ऑफ योर माउस, इट इज प्रोवाइडिंग यू एवरी डिटेल। तो कितनी क्वालिफिकेशन मिल गई सर? कुछ आया मजा सर? कैन वी गेट अबाउट कारो एंड नोट्स ऑन अकाउंट आल्सो? सब कुछ करवाऊंगा सर, जुड़े तो रहिए। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो स्टार्टअप है, मेन कोर्स तो बाकी है सर। तो जस्ट मैंने बताया कि आप चैट जीपीटी से क्या करा सकते हैं एक क्लॉज 44 पे देके। अब लोग कहते हैं यार फिर दोबारा टाइप करना पड़ेगा। नहीं सर, कुछ नहीं करना। अब देखिए यहां से आपने कॉपी करना है, जो आपको क्वालिफिकेशन डालनी है पूछी, कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, और जहां आपने पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर लीजिए। हाँ जी। अब कोई पार्टिसिपेंट हमारे पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ टैक्स ऑडिट जीपीटी? टैक्स ऑडिट जीपीटी सर इज डेवलप्ड बाय मी। इसके साथ जितने डाटाबेसिस, जितने इंफॉर्मेशन है वो मैंने इंटीग्रेट किया। इट इज मेरा टूल, इट इज माय टूल। यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम मी ओनली, यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम मी ओनली। अब देखते हैं ये टैक्स ऑडिट जीपीटी और क्या क्या करेगा आपके लिए। सर देखिए प्लीज, आइए। व्हाट इज द कोस्ट सर? सर बहुत सस्ती कोस्ट है, बहुत जेन्युइन कोस्ट है, बड़ी जल्दी बताने वाले हैं। पहले आप सीख लीजिए करना है कैसे है, कोस्ट भी बताएंगे सर। चलिए आप उसके बाद चैट जीपीटी टैक्स ऑडिट विद जीपीटी नाउ। अब आज के टाइम में आपने देखा कि आज ऑडिट करने से डर लगने लग गया, क्योंकि हर अथॉरिटी, कहीं नेफ्रा, कहीं इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिनरी बोर्ड, कहीं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, कहीं पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड, कहीं पर टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, कहीं पर पीयर रिव्यू बोर्ड, कहीं पे नेफ्रा, कहीं पे जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले, हम ऑडिटर को एक भेड़िए की तरह देख रहे हैं कि अभी खा जाएंगे। ऐसे टाइम में जब हमें ऑडिट करना मुश्किल हो गया और हर आदमी हमारे पे हाथ डाल लेता है, हमारे लिए जरूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि हम पीयर रिव्यूड भी हो सकें, हमारी क्वालिटी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो सके। हम आज नंबर 1 अकाउंटिंग बॉडी है, तो नंबर 1 ही हमारी क्वालिटी और एथिक क्वेश्चन होनी चाहिए। इसके लिए आज के वेबिनार में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे टैक्स ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन होना है, और चैट जीपीटी से विद इन क्लिक ऑफ माउस आप कैसे कर सकते हैं। तो सर मैं चैट जीपीटी से पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने कहा प्रॉम्प्ट गेम है, तो पहला क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से पूछने वाला हूं सर कि टैक्स ऑडिट के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए कि नहीं चाहिए सर? सर टैक्स ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए
कल को आपने पीयर रिव्यू कराना है, कल को किसी अथॉरिटी को जवाब देना है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए कि नहीं चाहिए? चैट बॉक्स में बताइए सर, चाहिए कि नहीं चाहिए? अविचल चौधरी जी यस, कैलाश गुप्ता जी यस, अनूप कुमार ग्रोवर जी यस। अब इसी अपॉइंटमेंट लेटर को बनाने का परफॉर्मा हम जगह जगह ढूंढते रहते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक हमें मिलता नहीं। मैं आपको इतना स्टैंडर्डाइज परफॉर्मा दूंगा, आपको वो मजा आ गया सर। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने हर क्वेरी के लिए स्पेसिफिक कर दिया सर। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं चैट जीपीटी पे गया, चैट जीपीटी पे जाके मैंने एक फाइल अटैच की जिसमें मैंने ऑडिटर और ऑडिटी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैं चैट जीपीटी पे गया जहां पर ऑडिटर और ऑडिटी की सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जाके मैं हर फाइल अटैच कर रहा हूँ। एक मिनट बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर मैंने फाइल में सारा डाटा दिया है सर, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। टैक्स ऑडिट जीपीटी वेबिनार फाइल, ये फाइल मैंने अटैच कर दी सर। और प्रॉम्प्ट मैंने बना दिए हैं। मैंने कहा सारा का सारा खेल प्रॉम्प्ट का है। लोगों को प्रॉम्प्ट नहीं लिखना आता, लेकिन मनोज लांबा जी आपको अपने टूल के हाथ रेडीमेड प्रॉम्प्ट देंगे जो कोई नहीं देता, और उस प्रॉम्प्ट से आपको आईसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक चीजें मिलेंगी जैसे चाहिए। अब जैसे मैंने किसके लिए प्रॉम्प्ट क्या डाला, मेरे पास रेडीमेड प्रॉम्प्ट तैयार है, एक मिनट बने रहिए। पहला प्रॉम्प्ट अपॉइंटमेंट लेटर के लिए हर मैं डाल दूं। Just with me. Hope all of you are enjoying the session. Just a bit, थोड़ा सिस्टम नेट स्लो चल रहा है सर, थोड़ा सा पीपीटी खुलने में टाइम लग रहा है, तब तक हम थोड़ा आपस में कन्वर्सेट कर लेते हैं। ये मेरा प्रॉम्प्ट है सर विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट लेटर। सर मैंने क्या लिखा चैट जीपीटी को वो आपको बता रहा हूँ, पढ़ के बताता हूँ मेरा प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है सर। मेरे प्रॉम्प्ट में लिखा है प्लीज नोट लिसन मी वेरी केयरफुली, प्लीज टेक ऑल रेलेवेंट डिटेल ऑफ द ऑडिटी एंड द ऑडिटर फ्रॉम द अटैच्ड फाइल। इसमें सारी इंफॉर्मेशन देती है। एंड क्राफ्ट ए डिटेल्ड and comprehensive tax audit appointment letter. This letter should clearly define about the scope of work for the tax audit under section 44AB of Income Tax Act 1961. Further, this letter should be formatted on auditee letterhead and also adhere to ICI guidelines. मैंने एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट बना दिया, जो मेरे को चाहिए था मेरे आका को बता दिया। अब देखिए ये आका क्या करता है सर, देखिए सर मैजिक। अपॉइंटमेंट लेटर देखिए सर, सब कुछ इनबिल्ट है, मेरे को कुछ नहीं करना सर, मेरे को कुछ नहीं करना, सब कुछ इनबिल्ट है। अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर आपने बनाया नहीं होगा सर आज तक, जितने भी साल की प्रैक्टिस होगी, इस बात की गारंटी मैं करता हूं सर। अब आगे देखिए, मजा आने वाला है इसको पढ़ के आपको, अभी दिखाऊंगा क्यों मजा आने वाला है। सर देखिए अब क्या हुआ इस पे, ये ऑडिटी और ऑडिटर की डिटेल दे रखी थी। इस केस में ऑडिटी है राधे कृष्णा इंटरप्राइजेज, जिसका एड्रेस है करोल बाग दिल्ली, उसकी ईमेल आईडी दे रखी है, उसकी मोबाइल दे रखी है। ये कहां दे रखा था, कहां से इसको सपना आया, ये मेरी अटैच्ड फाइल में डिटेल थी। ये अटैच फाइल का फॉर्मेट है, आपने इसको अटैच फाइल दी,
इसने ओडीटी का नाम अपने आप उठा लिया, एड्रेस अपने आप उठा लिया, ईमेल अपने आप उठा ली, मोबाइल अपने आप उठा लिया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अपने आप उठा ली, ऑडिटर का एड्रेस सर अपने आप उठा लिया, अपॉइंटमेंट का ईयर अपने आप उठा लिया। अब क्या बता रहा है सर, प्लीज पढ़िए इस लेटर को एक बार, क्योंकि मैं पढ़वाना चाहता हूं, तभी आपको समझ आएगी कि क्वालिटी क्या है। ये कहता है, डियर सर, we are pleased to confirm your appointment as tax auditor for Radhe Krishna Enterprises for the financial year 23-24 relevant to the assessment year 24-25 under section 44AB of Income Tax Act 1961. Then it is describing the scope of work. Your appointment is limited to the audit of accounts under the Income Tax Act. Your duty is limited to the verification of form number 3CA, 3CB, 3CD. Then ensure all necessary disclosure included, not limited to clause 44 of 3CD, are accurately reported in compliance with relevant laws and regulations. Then review and verification. और रिव्यू एंड वेरिफिकेशन में अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के दे रहा है कि भैया मैं फीस दे रहा हूं, क्लोज 44 पे आपको काम करना है। ये नहीं लिख के देना कि हम कर नहीं सकते। कर नहीं सकने वाला काम छोड़ दो, आज टेक्नोलॉजी सब कुछ कर देगी सर। तो यहाँ पे लिखो कि मैं क्लोज 44 की डिटेल भी दूंगा, सेग्रीगेट भी करूंगा, आईटीसी की क्लेम को वेरीफाई भी करूंगा और उसकी फीस भी लूंगा। देन कोऑर्डिनेशन विद प्रीवियस ऑडिटर भी इसने बता दिया आपने कैसे करना है। आपकी नई अपॉइंटमेंट हो रही है, इसने कहा कि आपके प्रीवियस ऑडिटर गोयल एंड कंपनी है प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली से, उनसे आप कोरेस्पोंडेंस कर लेना। कंसल्टेशन एंड एडवाइजरी में आपका कोई लेना देना नहीं है, फाइलिंग एंड कंप्लायंस आपकी ड्यूटी है। फिर ये बता रहा है कि 1 लाख रुपए मेरी फीस है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग से हैं, और कैसे देनी है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर बता रहा है। हर 50% आपने ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करते समय देनी है, 50% आपने ऑडिट कंप्लीट होने के बाद देनी है। और इसके बाद मैंने एक चीज इसमें और ऐड की जो ब्यूटी बता रही है मेरे अपॉइंटमेंट लेटर की। मैंने बताया कि अगर मेरी पेमेंट डिलेड पेमेंट हुई एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंगली, तो मेरा राइट है पेमेंट लेने का 3 गुना ब्याज के साथ, जो कंपाउंडेड होगा और 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई रेट होगा। ये मैंने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखवाया। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी की कंसेप्ट लिखवाई, इंडिपेंडेंस की बात की, कंप्लायंस की बात की, डॉक्यूमेंटेशन की बात की, टर्मिनेशन कैसे हो सकती है उसकी बात की, और सारा लेटर आपके सामने आ गया। और नीचे अपने लिए एक्सेप्टेंस का कॉलम भी बनाया कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पर, इन कंडीशंस पर मैं काम करने के लिए बीइंग ए ऑडिटर रेडी हूं कि नहीं हूं। और अगर इससे भी मजा नहीं आया तो इसको कहो कि और डिटेल दो, और कंप्रहेंसिव दो, और डिटेल इंक्लूड करके दो। तो ये सब कुछ आपके लिए देगा सर, क्योंकि ये टैक्स जीपीटी तो बजा ही आपके हुक्म बजाने के लिए। तो कौशल जी मजा आ रहा है? डिटेल्ड कंसेप्ट, और एक फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा आपको दूसरा देगा, दूसरा पसंद नहीं आ रहा तीसरा देगा, तीसरा पसंद नहीं आ रहा चौथा देगा, चौथा नहीं पसंद आ रहा 10वां देगा। जब तक आप पूछते रहेंगे तब तक ये आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ये आपका आर्टिकल नहीं है, ये आपका एम्प्लॉय नहीं है जो आपको मना कर देगा। ये आपको जवाब देता रहेगा और हर बार पहले से बेहतर देता रहेगा। जो लिखवाना है लिखवाइए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देगा। और अब आपको करना क्या है सर, अगेन आप इसको राइट क्लिक कीजिए, हर एक को कॉपी पेस्ट कीजिए, वर्ड में आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है सर। यस, क्लिक ऑन कॉपी, एंड कॉपी के बाद पेस्ट इन वर्ड एंड देन प्रिंट इट। योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी। So how to generate appointment letter from ChatGPT? Is it clear to you? Or as many as formats you require in a different manner, just write in the prompt properly, it will give you. It is your friend. Now technology is your friend, but आदेश तो देना पड़ेगा। अभी तक गूगल पे कहते थे ना, अलेक्सा ये कर दो, अलेक्सा वो कर दो। अब आपको चैट जीपीटी को बताना है,
अब आपको टैक्स ऑडिट जीपीटी को बनाना है। इस 30 सितंबर घबराने की जरूरत नहीं, हर डॉक्यूमेंट तैयार करवाऊंगा सर, बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा आपकी। पहले अपॉइंटमेंट लेटर क्लियर, और किसी को अपॉइंटमेंट लेटर से रिलेटेड कोई सवाल है कि ये अपॉइंटमेंट लेटर ऐसी नहीं, ऐसे बनना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, वो कर ले सर। Have anyone has any specific question? किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल है? लेटर पैड पे निकालो सर, तो निकाल देंगे हर लेटर पैड पे। आप लेटर पैड बना लीजिए 2 लाइनों का, उस पर लिख देगा। इस पर लिख दीजिए कि स्पेसिफिकली प्रिंटेड ऑन लेटर पैड। जस्ट ए मिनट प्लीज प्रिपेयर प्रॉपर लेटर पैड of oddity for me and rewrite this letter on लेटर पैड ओनली। एक भाई साहब कह रहे हैं लेटर पैड पे निकाल के दिखाइए। लो जनाब, ऊपर उसने जगह छोड़ दी, आप लेटर पैड पे प्रिंट कर लीजिए। नहीं तो इसका लेटर हेड आप अलग से डिजाइन कर लीजिए, आपको वहां पर ये दे देगा। और एक चीज और बता दूं इस टैक्स ऑडिट जीपीटी के बारे में आपको, जितना आप इससे पूछेंगे, जितना आप इससे इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप इसको ट्रेन करेंगे, ये उतना ही स्मार्ट होता जाएगा। क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट को मैंने आज नहीं, कल 15 अगस्त को ही लॉन्च किया है, और आपको ये इतने जवाब दे रहा है। तो जैसे जैसे आप इससे जवाब करते जाएंगे, जैसे जैसे मेरा यूजर बेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पूरे हिंदुस्तान से सवाल आएंगे, ये उतना ज्यादा ट्रेंड होता जाएगा। सेम जितना आप अपने एम्प्लॉय को सिखाते हैं, जितना आप अपने आर्टिकल को सिखाते हैं, जितना आप अपने असिस्टेंट को सिखाते हैं, वो उतना ज्यादा ट्रेंड होता जाता है। तो नाउ इट इज योर आर्टिफिशियल असिस्टेंट, इट इज योर आर्टिफिशियल असिस्टेंट। तो जितना आप इससे सवाल पूछोगे उतना ये ट्रेंड होता जाएगा हर। और इसकी ब्यूटी ये है कि जैसे जैसे इस पे और डाटाबेसेस ऐड होते जाएंगे, ये उतने सुंदर, उतने खूबसूरत, उतने इंप्रेसिव जवाब देगा। तो अब नाउ कमिंग टू दिस सर, लिमिटेड रिव्यू ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेसेसिटी। हर जो कमी लिखती है उसे लिख दो, वो पूरी कर देगा। अब आगे आते हैं सर अनूप जी, आगे चलते हैं। अब दूसरा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है सर एंगेजमेंट लेटर। अब मेरा क्वेश्चन है सर, क्या अपॉइंटमेंट लेटर और एंगेजमेंट लेटर में कोई फर्क होता है या दोनों सेम होते हैं? Whether there is any difference between appointment letter and engagement letter or both are same? Yes, there is a difference. तो मैं क्या कहता हूँ भैया एंगेजमेंट लेटर भी दे, क्योंकि टैक्स जब रिव्यू होगा तो मेरे को वो भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगेजमेंट लेटर का प्रीव्यू दिया सर, एंगेजमेंट लेटर का प्रीव्यू दिया, और अपने टैक्स ऑडिट जीपीटी को कहा भैया मेरे को दे दो। मेरे प्रॉम्प्ट रेडी कर रखे हैं और प्रॉम्प्ट मैंने डाला। देखिए सर, टैक्स ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपके लिए तैयार कर रहा है सर। ये मनोज लांबा जी लिख रहे हैं आप अपने क्लाइंट को कि इन टर्म्स पर मैं एंगेज्ड होने को तैयार। अब डिटेल देखिए सर, मैंने कहा ना स्मार्ट होता जाएगा। अब इसने मनोज लांबा जी का नाम भी लिखा, एड्रेस भी लिखा, फोन नंबर भी लिखा, ईमेल आईडी भी लिखा, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा, पैन भी लिखा, नीचे ओडीटी की डिटेल में ओडीटी के नीचे लिखा, जहां मनोज लांबा जी अब बता रहे हैं कि इस फीस पे भैया मैं तेरा ये काम करने वाला हूं, इससे बाहर मेरे काम करने की फीस नहीं ली है, इससे बाहर काम करने की फीस नहीं ली है, और ऐसी ऐसी देने पड़ेंगे आपको पैसे। और देखिए यहां पर इसने एक पैराग्राफ ऐड किया, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को ऐड किया, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी को ऐड किया, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटेनेशन को ऐड किया, टर्मिनेशन को ऐड किया, और एवरीथिंग भी इस एंगेजमेंट लेटर पर इन टर्म पे मैं एंगेज होना चाहता हूं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? तो वो उसका जवाब आ जाएगा। तो इन सच ए ब्यूटीफुल मैनर इट विल प्रिपेयर एंगेजमेंट लेटर ऑफ यू। तो इसको कॉपी कीजिए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार हो गया कौशल जी, आपका एंगेजमेंट लेटर भी तैयार हो गया। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब मजे की बात देखते हैं सर। अब ये ऑडिट जो आ रहा था सर कौशल जी, आपके पास आ रहा था किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट का। जब किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमारे पास कोई ऑडिट आता है तो हमें प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना होता है कि नहीं करना होता सर? वेदर कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर इज मैंडेटरी और नॉट? यस, करना होता है। ना करे तो आपको पता है कि इतने डिसिप्लिनरी पे केस लग रहे हैं। किसी का 1000 रुपए वाला ऑडिट गया है, उसने भी वहां पे केस कर दिया, डिसिप्लिनरी में कंप्लेंट कर दी कि इन्हें तो मेरे प्रीवियस ऑडिटर ने मेरे से कम्युनिकेट नहीं किया। Just for 1,000 rupees member complaining to the institute to take action against another brother or sister. That's the time of technology now. तो कैसे ये बेटर वे में तैयार करना है, मैं ये भी चैट जीपीटी से कहूंगा सर। चैट जीपीटी से पूछिए क्या नहीं होता, तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ क्या कर सकते हैं। मैंने कहा भैया आप मेरे को कम्युनिकेट कीजिए प्रीवियस ऑडिटर के साथ। देखिए आप कम्युनिकेट कीजिए प्रीवियस ऑडिटर के साथ। मैंने इसको कम्युनिकेट करने को कहा और इसने कम्युनिकेशन लेटर तैयार कर दिया। सर देखिए ये मनोज लांबा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट लेटर लिख रही हैं। किसको? मनोज लांबा एंड कंपनी लिख रही है गोयल एंड एसोसिएट को। किस लिए? एनओसी के लिए और प्रोफेशनल एथिक्स के अनुसार प्रोफेशनल क्लियरेंस के लिए। और लेटर की वर्डिंग पढ़ना सर, ऐसा कम्युनिकेशन लेटर कौशल जी हमने कभी नहीं बनाया जैसा मेरे को आज टेक्स्ट जीपीटी बना के दे रहा है। अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ कम्युनिकेशन लेटर, आनंद आने वाला है आपको सुन के सर। किस तरह का लेटर आज बनेंगे और किस तरह की कोर्ट्स में आपको अब ड्राफ्टिंग स्किल मिलने वाली है, क्योंकि अब ड्राफ्ट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील नहीं है, ड्राफ्ट करने वाला एआई है सर। ना सुनिए, डेट 16 अगस्त to Goyal and Associate Chartered Accountant Pitampura, New Delhi. Subject request for NOC and professional clearance for tax audit of Radhe Krishna Enterprises. Sir, we are appointed as a tax auditor of Radhe Krishna Enterprises, Karol Bagh, Delhi, for the financial year 23-24, assessment year 24-25, under Section 44AB of the Income Tax Act 1961. Our firm, Manoj Lamba and Company Chartered Accountant, will be conducting the tax audit in accordance with the applicable standard and guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of the India. Why we are writing this letter? Ethical requirement and best global practices. In accordance with the ethical standard established by the ICI and best global practices, it is customary for us to seek professional clearance from previous auditor before accepting this assignment. This practice is in alignment with ethical guidelines under the Code of Ethics issued by the ICI, which emphasizes on the importance of professional courtesy, integrity amongst the chartered accountant. As a newly appointed tax auditor, we require to obtain no objection certificate from your esteemed firm to ensure that there are no professional reasons that would prevent us from accepting the engagement. The following points are considered as our ethical procedure. एक तो मेरे को प्रोफेशनल के रीजन बता दो, एक कोई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तो वो बता दो, और कोई मेरे को रिकॉर्ड चाहिए तो वो मेरे को हेल्प कर दो। और रिक्वेस्ट फॉर रिस्पॉन्स में आप क्या लिख रहे हैं? इन लाइन विद दिस गाइडलाइन वी रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट। इफ we don't receive a response within this framework, it will be presumed that you have no objection to our acceptance to this engagement, and there is no unresolved professional matter between your firm and Radhe Krishna Enterprises. Your timely cooperation in the matter will be highly appreciated and will contribute in maintaining the highest standard of professionalism expected in our field of chartered accountancy. We look forward for your prompt response. Please feel free to contact us if you require any further information or clarification with respect to this audit. तो सर
आपसे पूछता हूँ, आप जरूर बताइएगा सर, मजा आया प्रीवियस ऑडिटर से लेटर लिखने का? आज तक 2 लाइनों का लेटर लिख देते थे कि भैया ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, आप एनओसी भेज देना। ये भैया कोई लेटर होता है? कुछ आनंद आया जी? कौशल जी, जी वाहिद साहब, जी रिपल शाह जी, कुछ आनंद आ रहा है? और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कर रहा है। और फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आका को बोल दीजिए, दोबारा कर देगा, दोबारा कर देगा सर। अब मजे की बात देखिए कौशल जी, आपने प्रीवियस ऑडिटर से कोरस्पोंडेंस किया और प्रीवियस ऑडिटर ने सर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। मैं प्रीवियस ऑडिटर हूं, मैं इनकमिंग ऑडिटर हूं और गोयल एंड एसोसिएट्स को चिट्ठी लिखी थी। गोयल एंड एसोसिएट्स कहते हैं कि भैया मेरी तो फीस पेंडिंग है। तो अब गोयल एंड एसोसिएट्स ने ये चिट्ठी लिखनी है, आपने प्रीवियस ऑडिटर को रिप्लाई करना है। ये नहीं कि गो अहेड, हमारे यहाँ एक कल्चर है, लिख दिया जाता है ओके गो अहेड। अगर मेरे को अपने कंपटीटर को, अपने राइवलरी को बताना है कि क्यों ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, गो अहेड। आप तो कुएं में गिरे हुए थे, उसे भी कहा तू भी गिर जा भैया, मेरे को छोड़ के क्यों जा रहा, उसको बताओ तो सही। कौशल जी, आप मेरे को एग्री कर रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि मेरे को छोड़ के जा रहा है, तो क्यों छोड़ के जा रहा है, पूछो तो सही। या मैं कह दूं आपको ओके गो अहेड, तो पूछो तो सही मेरा दर्द क्या है, मेरे दर्द दिल की दवा क्या है। तो मैं अपने दर्द दिल की दवा कैसे बताऊंगा, उसके लिए अनदर प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। सारा गेम प्रॉम्प्ट का है सर। जिसने ये प्रॉम्प्ट सीख लिए या प्रॉम्प्ट खरीद लिए मेरे से, वो काम हो गया सर। अब आइए, कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद सर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अब दर्द दिल की दवा सुनिए। अब गोयल साहब क्या कहने वाले हैं, अभी आप 2 मिनट में सुनेंगे। गोयल साहब की बयान ये लिख रहा है। अब गोयल साहब ने पहली बात तो ये कह दी कि मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ ओके गो अहेड ना लिखिए। गोयल साहब क्या लिखेंगे? गोयल साहब लिखेंगे दिस इज टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड 16 अगस्त 2024 regarding the appointment of your firm as a tax auditor of the Radha Krishna Enterprises, Scrollback, New Delhi for the financial year so and so for conducting the tax audit under section 44AB of the act. No objection कैसे लिख रहा है? We hereby confirm that we have no objection to your firm accepting the audit engagement of Radhe Krishna Enterprises. After reviewing our record and considering our relevant professional and ethical consideration, we affirm that there are no professional reason or outstanding issue that would prevent you from proceeding with audit engagement. प्रोफेशनल कर्टसी के अकॉर्डिंगली जो आपको पेपर चाहिए होगा वो भी दे देंगे, और कंक्लूजन और एंगेजमेंट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपल हो गया। गोयल साहब नाराज नहीं हुए, गोयल साहब ने जवाब दे दिया। अब अगर गोयल साहब को कोई ऑब्जेक्शन है सर, देखिए पहला ऑब्जेक्शन, ऑडिटर साहब ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया सर, गोयल साहब ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। उसके लिए प्रॉम्प्ट क्या कहा कि मेरी फीस पेंडिंग थी, किस ढंग से कहा वो भी देखिए। चलिए सर, गोयल साहब का जवाब सुनिए। एक तो पहली बार तो राजी हो गए थे, दूसरी बार इन्होंने जवाब क्या दिया, हर सुनिए, लिख लेने दीजिए, मैं पढ़ के बताऊंगा, आनंद आने वाला है। अब देखिए हर गोयल साहब का जवाब। गोयल साहब क्या कह रहे हैं? गोयल साहब कह रहे हैं कि हमें आपका लेटर प्राप्त हुआ जिसमें आप करोल बाग राधे कृष्णा इंटरप्राइजेस का ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, हमें खुशी है, आपका लेटर मिला। लेकिन हमने अपने रिकॉर्ड चेक किए, आफ्टर रिव्यूइंग आवर रिकॉर्ड वी मस्ट ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट
there are outstanding audit fees related to previous tax audit engagement conducted by our firm for Radhe Krishna Enterprises. Despite of our repeated request and reminder to the management, the fees remain unpaid. As per the ethical standards set by the Institute of Chartered Accountants of India, it is our duty to inform you that this unresolved matter before you proceed with accepting the engagement. तो गोयल साहब अब थोड़ा गुस्सा हो गए हैं कि मेरी फीस पेंडिंग है, लांबा जी इसका ऑडिट कैसे कर लेंगे। उन्होंने क्लियर शब्दों में लिखा कि एथिकल स्टैंडर्ड आईसीआई के ये कहते हैं कि भैया मेरी फीस क्लियर करवा दो, मेरा मैटर रिजॉल्व कीजिए। नीचे उन्होंने डिटेल दी कि किस किस काम के कितने पैसे पेंडिंग हैं। The total outstanding amount of audit subsidies rendered for the financial year 22-23 is this. The amount remains unpaid despite reminder issued to the management of Radhe Krishna Enterprises. Then correspondence with the management. और उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं सर, नीचे पढ़िए। As per the clause 8 of part 1 of first schedule of the Chartered Accountant Act 1949. सर क्या मैंने इसको क्लोज बताई? क्या कौशल जी मैंने क्लोज बताई? गेटिंग माय पॉइंट? मैंने हर इसको क्लोज नहीं बताई, तब भी ये मेरे पे ऑब्जेक्शंस बता रहा है कि ये क्लोज अपने आप उठाई इसने। क्यों उठा ली? क्योंकि ये डाटा इंटीग्रेटेड है जो चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेटेड नहीं था। मैंने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइंस इसके साथ इंटीग्रेट कर रखी है, तो बता रहा है कहां पर आप गलत कर रहे हैं, कहां पर आपका इंटरेस्ट है। तो इसी वे से अगर आपने अंडर कटिंग ऑफ फीस की है तो उसका जवाब भी देगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर जल्दी वाइंड अप कीजिए, सर मैं जल्दी वाइंड अप कर देता हूं, आपकी इच्छा पे हैं हम। तो जो लोग नहीं सुनना चाहते वो वाइंड अप करवा सकते हैं, नहीं तो जितना मेरा प्रेजेंटेशन है मैं करता हूं। तो सर अब अगले रिप्लाई पे आते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आप अंडर कटिंग कर रहे हैं इसलिए आप ये ऑडिट नहीं कर सकते। तो कौशल जी यहाँ पे भी इनका रिप्लाई सुनते हैं। देखिए सर, अगर आप अंडर कटिंग ऑफ फीस करके कोई ऑडिट ले रहे हैं तो गोयल साहब ने इसमें पूरी विवरण दिया है क्यों नहीं करने चाहिए। कंसर्न रिगार्डिंग फीस अंडर कटिंग क्यों है वो उन्होंने बताया। प्रोफेशनल और एथिकल कंसिडरेशन क्या कहते हैं वो बताया, और इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क हैम्पर होगी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी हैम्पर होगी, और हमारे जो प्रोफेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड है उनसे हम कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ऑडिट करें पर अंडर कटिंग ऑफ फीस ना करें। तो ये लेटर, ब्यूटीफुल लेटर जिसे आप कह सकते हैं, इंप्रेसिव लेटर इसने आपके लिए तैयार कर दिया। सर मेरे को कुछ चीजें और देनी है इसलिए मैं लेटर पढ़ नहीं रहा पूरा। अब आपके हाथ अगले प्रॉम्प्ट पे आ रहा हूं। सर प्रॉम्प्ट के खेल देखिए। अब आपको पीयर रिव्यू बोर्ड ये कहता है कि अगर कुछ पॉइंट्स पर आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं तो ऐसे में आपको मैनेजमेंट से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना होता है। और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको उन सभी मुद्दों पे लेना है जो मुद्दों पर आप हैं। और हाउ द प्रीवियस ऑडिटर नो अबाउट अंडर कटिंग? अब मेरे को पता नहीं कितने पे ऑडिट अपॉइंटमेंट हो रहा है, उससे अपॉइंटमेंट लेटर मांग लीजिए। उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है अपने क्लाइंट से मांग लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर में फीस लिखी होती है, उससे फोन पे पूछ लीजिए। प्रोफेशनल कर्टसी है, आपका भाई है भैया, वो बता देगा कितने में कर रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है, आपका क्लाइंट ही बता देगा भैया आप ₹1,00,000 लेते थे, वो ₹50,000 ले रहा है। ओके ज्योति जी, इसके तो सब बड़े तरीके हैं, जग जाहिर चीजें हैं, ये तो ओपन है, खुला मैदान है। अब उसके बाद
बात कर रहे थे हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर की। हमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। हम लेते हैं कि नहीं लेते, कोई बात नहीं, लेकिन आज से लेना शुरू कर दो और हर उस मुद्दे के लिए लो जहां पर आपने अपनी राय बना ली, इस बात पर कोई ओपिनियन नहीं दिया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी, कोई कमेंट नहीं दिया, तो सब कुछ ये है। मैं कह रहा हूं कौशल जी, सब कुछ जग जाहिर है, यहाँ तो खुला मैदान है, सब पता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, एमआरआर आपको लेके देता हूँ टैक्स ऑडिट जीपीटी से। ये देखिए, हर टैक्स ऑडिट जीपीटी आपको पूरा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रहा है आपके नाम से बनाकर। कितना डिटेल्ड लेटर ये बनाएगा ये आपके सामने है। किताबों के रिगार्डिंग बनाया है, पहले टैक्स कंप्लायंस के रिगार्डिंग बनाया, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म 3CD में क्लोज 16 के रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ली इसने, ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्लोज 17 पे ली, क्लोज 21 पे ली, क्लोज 24 पे ली, क्लोज 27 पे ली, देन क्लोज 29 एंड 29B पे ली, क्लोज 31 पे ली, क्लोज 34 पे ली, क्लोज 36 पे दी, क्लोज 44 पे दी। और फिर भी आपको कोई लगता है कि कुछ रह गई हैं जिस पे होनी चाहिए, एडिशनल कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे दी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे दी, ग्रोइंग कंसर्न एजम्पशन पे दी, पोस्ट बैलेंस शीट एविडेंस पे दी, एक्नॉलेजमेंट एंड इंश्योरेंस पे दी, और फिर भी आपको कुछ लगता है कि कोई रह गया है जिस पर रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए थी वो नहीं आई, तो बोल दो आका को दोबारा, आपका हुक्म मानेगा सर, ना माने तो मेरे को पकड़ लेना। विल इट कस्टमाइज आल्सो? यस सर, कस्टमाइज ही तो बनाया है। आप चैट जीपीटी से ये सवाल पूछ रहे होते तो आपको इतने डिटेल्ड और स्पेसिफिक आंसर ना मिलते सर। यही क्लास, यही तो बता रहा हूँ, चैट जीपीटी और टेक्स्ट ऑडिट जीपीटी में यही बहुत बड़ा फर्क है कि ये आपको सब कुछ कस्टमाइज कर देगा आपके लिए। आप जितना स्पेसिफिक करेंगे, जितना इसके साथ खेलेंगे, उतना ये खुश होगा। ये नाराज नहीं होगा कि बॉस काम बहुत कराते हैं आर्टिकल से या सिस्टम से। इट मे वरी ऑडिटेड ओटी, यस, तो वैसा ले लीजिए ना। आपको किस किस पॉइंट पे चाहिए वो पॉइंट लिख दीजिए क्लास जी, की मेरे को क्लोज 33 पे चाहिए, मेरे को 29 पे चाहिए, मेरे को 34 पे चाहिए, मेरे को 44 पे चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए। उस स्पेसिफिक पॉइंट का डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन भी बना देगा सर ये। मैं तो कह रहा हूं उससे पूछो सर कि करना क्या है, इसको बाय करें और देखें कि काम कैसे कर रहा है सर। चलिए सर, इसके बाद आगे चलते हैं एंड अगला व्यू लेते हैं। इसके बाद सर मैं आपको बना के दे रहा हूं चेक लिस्ट। आपको टैक्स ऑडिट में अपने स्टाफ को टैक्स ऑडिट लिस्ट देनी है कि क्या क्या काम करना है सर। टैक्स ऑडिट लिस्ट, चेक लिस्ट, टैक्स ऑडिट में क्या क्या चेक करना होता है, तो ये आपके लिए बना रहा है सर। स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट। देखिएगा सर, कोलमर फॉर्म में कहा तो कोलमर फॉर्म में बना के देगा ये आपको। हर क्लोज के ऊपर क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, आपके स्टाफ को गाइड कर रहा है, क्या क्या पेपर आपकी फाइल में होने चाहिए। देखिए सर, कितना डिटेल्ड और कितनी जल्दी, क्या पॉइंट चेक करना है, टीसीएस में क्या चेक करना है, टीडीएस में क्या चेक करना है, बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करना है, रिलेटेड पार्टी में क्या करना है, जीएसटी में क्या करना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या करना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, बोरिंग्स में क्या करना है, डोनेशंस में क्या करना है, पेनल्टी पेमेंट्स का क्या करना है, रेमुनेशन ऑफ पार्टनर्स पे क्या करना है, सैलरी पेमेंट की चेकिंग कैसे होनी है, प्रोफेशनल फीस की कैसे होनी है, हर पॉइंट पे ये चेकलिस्ट दे रहा है। और फिर भी इसकी चेकलिस्ट में कोई कमी रह जाए सर, तो इससे दोबारा पूछ लेना सर। कंटिन्यू जनरेटिंग 65 पॉइंट बताए, इसने रुक गया था सर। मैंने कहा आगे चलो मेरे भैया, रुकना नहीं है, रुकना बना है।
तो थक गया बेचारा, इससे बहुत सवाल कर लिया हमने। तो मैंने कहा दोबारा चलो, तो दोबारा चल गया। अगर आपका आर्टिकल असिस्टेंट होता या एम्प्लॉई होता, वो तो कह रहा भैया लाला जी अब तो रात होगी, घर जा रहे हैं, छुट्टी होगी। ये 24 घंटे का आपका एम्प्लॉई है सर, आपके लिए करेगा और ब्यूटीफुली करेगा, हंस के साथ करेगा, सर्विस विद स्माइल करेगा सर, सर्विस विद स्माइल करेगा सर। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए आप पूरे 100 पॉइंट देगा आपको, ये 100 पॉइंट की चेकलिस्ट कहा था। कल को कौशल जी कहते हैं मेरा तो 100 में गुजारा नहीं चलता, मैं तो जाना पहचाना ऑडिटर हूं, तो ये 100 की जगह 200 पॉइंट भी चेकलिस्ट दे सकता है। करिए आप ऑडिट, कितना डिटेल में जाना चाहते हैं, किस किस पॉइंट को चेक करना चाहते हैं, हर किस क्लोज के रेफरेंस में है, उस क्लोज 1 क्या कहती है, क्लोज 1 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चेक होने हैं, और रिमार्क्स में क्या लिखना है। तो एवरीथिंग इट इज डूइंग फॉर यू। आप कुछ नया सीख रहे हैं सर, एक बार बता दीजिए मेरे को कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट साहब ने। ये पूछ रहे हैं एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइम ऑफ यूज ऑफ टैक्स ऑडिट जीपीटी? यस, बिल्कुल है सर। टैक्स ऑडिट जीपीटी सर, टैक्स जीपीटी मेरे पास पेड वर्जन है, आप पे पेड वर्जन नहीं है, जिसमें डेवलप किया वो भी पेड है। जब तक आप चैट जीपीटी की मंथली सब्सक्रिप्शन को बाय नहीं करेंगे, ये आपको रिस्ट्रिक्टेड यूज देगा। जब आप चैट जीपीटी का पेड वर्जन ले लेंगे, फिर आपको ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा। और अभी रिस्ट्रिक्शन चैट जीपीटी की क्या है, मतलब टैक्स ऑडिट जीपीटी को भी एंडलेस टाइम के लिए यूज करने के लिए, अनलिमिटेड मैनर में यूज करने के लिए आपको चैट जीपीटी की रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी। 10 सवाल करने हैं दिन में, आधा घंटा घंटा काम करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, फिर आपको पेड भी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बीइंग ऑडिटर, जैसे अब हमारा हेक्टिक सीजन चल रहा है, हमें सारा दिन अपने आर्टिकल्स को देना है काम इस पे, तो फिर हमें पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। और पेड वर्जन के लिए आपको बता दूं, $20 पर मंथ फीस आपको चैट जीपीटी को देनी पड़ेगी, प्लस जीएसटी, टैक्स ऑडिट जीपीटी की कॉस्ट के अलावा, टैक्स ऑडिट जीपीटी कॉस्ट के अलावा सर। चलिए सर, अब उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या कर सकता है। अब मैं इसे कह रहा हूं सर, मेरे लिए ऑडिट प्रोग्राम बड़ा जरूरी है कि कौन सा आर्टिकल कौशल जी मेरा कितना टाइम लगाए, किस काम पे लगाए। तो इसे कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट भी कहता है पीयर रिव्यू के लिए ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी देयर इन एवरी इश्योरेंस फंक्शन, कि कैसे आपने ऑडिट किया, कितना टाइम किस एक्टिविटी पे लगाया, किसने लगाया, कितना ठीक किया, कितना गलत किया, क्या नहीं किया, डिटेल्ड प्रोग्राम बनना चाहिए। तो इसे कह रहा हूं मैं, ऑडिट प्रोग्राम बना दो, जो आज तक हमने बनाई नहीं थी चीजें, तो ये मेरे लिए ऑडिट प्रोग्राम बना रहा है सर। देखिए सर, 1 मिनट लगेगा, ऑडिट प्रोग्राम बना देगा आपके लिए। देखिए हर नाम तक फिल करके बता रहा है कौन सा काम कितने घंटे करेगा, जनरल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन पे कितना टाइम लगाना है, उस टाइम में कितना काम करना है, कौन करेगा, एवरीथिंग इट इज गिविंग टू यू। नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन आपको किस टास्क पे कितना टाइम लगाना चाहिए, इसकी सुजेशन भी दे रहा है। जैसे देखिए जीएसटी वाला पॉइंट आया कौशल जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे इन्होंने अनिल कुमार जी की ड्यूटी लगाई और कहा इस पे 8 घंटे लगाने हैं, टीडीएस कंप्लायंस पे 7 घंटे लगाने हैं, और यही एडजस्टमेंट प्रेजम्पटिव टैक्सेशन पे कह रहा 3 घंटे ही बहुत है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये चैट जीपीटी सर इतना स्मार्ट है कि इसे पता है कि ये इंपॉर्टेंट टास्क है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, इस पे ज्यादा लगना चाहिए। तो क्लोज 44 पे हम पिछले हाल पूरे हाल चर्चा करते रहे, हमें समझ नहीं आ रही थी, तो चैट जीपीटी को समझ आ गया कि लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं मेरे से, तो इस पर टाइम भी ज्यादा चाहिए, तो कह रहा 8 घंटे लगवाओ, उस पर 6 घंटे लगवाओ, टीडीएस पे बहुत बातें होती हैं, टीडीएस कंप्लायंस समझ नहीं आते, तो 7 घंटे लगाओ। तो जैसे इंपॉर्टेंस है, इसने कोई ऐसे ही आपके साथ नहीं लिख दिया आर्बिट्रेरी कितना टाइम लगाना है, इसने रिसर्च करना है। और इसने क्या बताया, इस काम को करने के लिए, इतने ऑडिट को करने के लिए आपको 80 मैन आवर्स रिक्वायर्ड है, और 80 आवर्स रिक्वायर्ड है। कितने आर्टिकल्स में बांटना, कैसे बांटना, इस ऑडिट को करने के लिए 80 आवर्स रिक्वायर्ड है और डिटेल्ड है। और फ्रेंड प्लीज
note that this is a mandatory requirement to get them yourself peer reviewed. इसके बाद गैर आपका peer review नहीं होना चाहिए होगा। आपकी फाइल में हर ऑडिट का ऑडिट प्रोग्राम लगा होना चाहिए। और कैसे लगा होना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि सीरियल नंबर क्या है, क्या चेक किया, कौन सी क्लास से रेलेवेंट है, किसने चेक किया, कितने घंटे लगाए और क्या क्या चेक किया। फिर मैं ये कह रहा हूँ मैंने 8 घंटे लगा दिए थे जी जीएसटी ऑडिट पे, जीएसटी के कंप्लायंस करने पे। 8 घंटे में मैंने किया क्या, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, क्या करने चाहिए, वो ये बताएगा। और इसको आप और मॉडिफाई करना चाहते हैं और कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मैंने कहा बोलो, हुक्म करेगा आपका आका। आप जितनी बार मर्जी बनाइए, ये तो मैंने बनाया है, अपने प्रॉम्प्ट से बनाया है, आप प्रॉम्प्ट चेंज भी कर सकते हैं। पर एंड ऑफ द डे सर ये प्रॉम्प्ट ही बिकेंगे। सर मैं आपको बता दूं, ये बाजार में प्रॉम्प्ट बिकेंगे रेडीमेड। हम लिखते थे ना, अभी कट कॉपी पेस्ट करते थे, कोई सीनियर शेयर का बना देता था क्वालिफिकेशन का और वो क्वालिफिकेशन कट कॉपी पेस्ट हो जाती थी। अब चैट जीपीटी से काम कराना है तो हमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉम्प्ट बनाने पड़ेंगे कि इस प्रॉम्प्ट का ये इस तरह से रिप्लाई देता है। और ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉम्प्ट मैंने आज सारा दिन आपके लिए मेहनत करके डेवलप किए हैं सर, ताकि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का फायदा हो सके। तो ये था, आपने ऑडिट प्रोग्राम बना दिया सर, मैंने आपका ऑडिट चेकलिस्ट बना दी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर बना दिया, कोरस्पोंडेंस विद प्रीवियस ऑडिटर करा दिया, प्रीवियस ऑडिटर की कोई ऑब्जेक्शन है उसका कोरस्पोंडेंस करा दिया, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर बनवा दिया, आपका एंगेजमेंट लेटर बनवा दिया। एक दो चीजें और करते हैं सर। आज की डेट में हमारा पीयर रिव्यू बोर्ड, हमारा इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपके वर्किंग पेपर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कौशल जी। क्योंकि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, कोई भी अथॉरिटी आप पर कोई क्वेश्चन करती है, तो तभी आप बच पाएंगे जब आपकी फाइल में प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने कहा कि हर ऑडिट फाइल को आपने 2 भागों में विभाजित करना है, एक परमानेंट फाइल और दूसरी कंकरेंट फाइल या कंटिन्यूस फाइल या करंट फाइल, जो भी कह लीजिए, परमानेंट और करंट फाइल कह लीजिए। तो परमानेंट फाइल में कौन से पेपर लगे होने चाहिए कौशल जी, और करंट फाइल में कौन से पेपर लगे होने चाहिए, ये मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, टेक्स्ट ऑडिट जीपीटी से ही पूछता हूँ। तो मेरे को लिस्ट दे दे भैया, मेरे पास तो टाइम है नहीं, मेरे स्टाफ को बता देंगे। ये लिया सर मैंने और टेक्स्ट ऑडिट से पूछ ही लिया। तो ये टेक्स्ट ऑडिट जीपीटी क्या जवाब दे रहा है, देखिए ये बता रहा है सर कौन सा कागज करंट फाइल में लगाना है, कौन सा कागज परमानेंट फाइल में लगाना है। सर देखिए सर कितनी ब्यूटी के साथ आपको बता रहा है कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस डॉक्यूमेंट से मिलेगा। आप ह्यूमन इंटरफेस करके, मैनुअल इंटरफेस करके इतना बढ़िया रिकॉर्ड मेंटेन कर ही नहीं सकते थे। आपको लिस्ट वाइज बता रहा है कि आपकी फाइल्स में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। परमानेंट फाइल के ऊपर बताए, नीचे करंट फाइल में कौन से कागज लगाने हैं, एक एक प्रिंट आउट आप क्या अपनी हर फाइल पे लगाओ। आप आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को करना है, तो इसके प्रिंट आउट ले लीजिए सर। इसके प्रिंट आउट आप अपनी फाइल के बाहर लगा लीजिए। फाइल के बाहर लगाने के बाद अपने आर्टिकल को बोलो भैया ये कागज जरूर फाइल में लगे होने चाहिए, क्योंकि कल को जब पीयर रिव्यू आएगा, जब कोई अथॉरिटी में रहे क्वेश्चन करेगी, तो मैं कहूंगा कि एज पर आईसीआई गाइडलाइंस मैंने कागज बनाए हुए हैं, ये मेरी परमानेंट फाइल रही, ये मेरी करंट फाइल रही। जो कागज परमानेंट फाइल में होने चाहिए थे वो सारे परमानेंट में हैं, जो सारे हमारे करंट फाइल में होने चाहिए थे कौशल जी वो करंट फाइल में हैं। तो अपनी फाइलों को 2-2 कर दीजिए, कुछ और मेहनत नहीं करनी तो कम से कम इसका प्रिंट आउट ले लेना सर, और प्रिंट आउट लेके फाइल में लगा देना, लड़के की ड्यूटी लगा देना, स्टाफ की ड्यूटी लगा देना कि भैया ये कागज तो खरीद के पूरे कर लिया कर, ऑडिट में चेक कर ना कर, फाइल में तो जरूर लगा लिया कर कि देखा था भैया, तो देखा वाला भैया वाला काम तो कर ही लो। तो सर कुछ नया सीख के जा रहे हैं सर, आप कुछ सीख रहे हैं सर आज नया। मेरे को टाइम हमेशा कम रहता है, सिखाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। लास्ट पॉइंट मैं आज आपको कराऊंगा, बाकी अगला सेमिनार हम अगले वीक करेंगे। अब एक लास्ट प्रॉम्प्ट मैं आपको कराने वाला हूं सर, और लास्ट प्रॉम्प्ट में मैं आपको बताऊंगा सर, एक हमारा सर एसए 700 है। कितने लोग एसए 700 से वाकिफ है सर, प्लीज बताइएगा कितने लोग एसए 700 से वाकिफ हैं। अनूप जी कह रहे हैं वाकिफ हैं, कौशल जी कह रहे हैं वाकिफ हैं, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वाकिफ है। अब
कितने लोगों को ये बात पता है कि SA 700 के रेलेवेंट पैराग्राफ आपकी 3CA में और 3CB में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, नहीं तो आप पर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का एक्शन हो सकता है। कितने लोगों को ये बात पता है? If you are not incorporating the paragraph required by SA 700, not in your 3CA or 3CB, then the ICI will take disciplinary action against you for non-compliance of certain guidelines. और कितने लोग, आप सैंपल उठा लीजिए, क्योंकि मैं तो टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का भी मेंबर हूँ, उनका रिव्यूअर हूँ। मैं देखता हूँ कि बैलेंस शीटों में कहीं ये रेफरेंस ही नहीं आता। 90% बैलेंस शीट हमारी SA 700 पे फेल है, कहीं कोई रेफरेंस नहीं दिया। अब SA 700 वाले पैराग्राफ इनकॉर्पोरेट करने हैं, अपनी 3CA और 3CB नई कैसे बनानी है, इसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, ये प्रॉम्प्ट दे दिया। ये सारा खेल कौशल जी, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, प्रॉम्प्ट का है। अगर प्रॉम्प्ट सही होगा तो उत्तर ठीक देगा। सवाल तमीज से करोगे तो आंसर तमीज में पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज अगर आपका प्रॉम्प्ट हैम्पर्ड है, प्रॉम्प्ट हैपहैजर्ड है, प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो आपको ये टैक्स ऑडिट जीपीटी सही जवाब नहीं देगा। तो आपको हमारा टूल लेने का फायदा सर ये है कि आपको हम प्रॉम्प्ट भी देंगे, हर चीज का स्टैंडर्डाइज प्रॉम्प्ट भी देंगे जो कोई और नहीं दे रहा। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट भी दूंगा जो उनकी डे टू डे वर्किंग में काम आएंगे, जो बाकी लोगों के पास ये प्रॉम्प्ट नहीं है। क्योंकि एक नौसिखिया खिलाड़ी तो गलत प्रॉम्प्ट लिखेगा। अगर कंप्यूटर, ये आप प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट में ये आपके लिए कोडिंग कर रहा है। पहले ये कोडिंग प्रोग्रामर करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते थे। आज मेरे लिए ये कोडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है सर। तो मेरा सबसे बढ़िया काम यह है कि जितना प्रॉम्प्ट मेरा हर स्टैंडर्डाइज्ड होगा उतना मेरा रिप्लाई भी स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो प्रॉम्प्ट या तो आप खुद लिखना सीखिए, बढ़िया बनाना सीखिए, स्टैंडर्डाइज बनाना सीखिए। जब तक आप नहीं सीख जाते, मेरे प्रॉम्प्ट यूज कीजिए, मेरे प्रॉम्प्ट यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, तो आज मैंने कुछ आपको चीजें सिखाई। मेरी कोशिश ये है कि इस टूल से ही, इस टैक्स ऑडिट जीपीटी से ही हम बैलेंस शीट भी बनाएं। मैं उसको ट्रायल दूं, वो ट्रायल से बैलेंस शीट बना के मेरे को दे, और मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूं सर। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि आप जस्ट गिविंग द ट्रायल बैलेंस टू द जीपीटी एंड इट विल कन्वर्ट योर बैलेंस शीट इनटू दैट। मुकेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं सर, इवन एज पर शेड्यूल 3, हर शेड्यूल 3 के लिए अलग जीपीटी बनाऊंगा, उसके पे वर्किंग है। पहली जीपीटी है, पहले का रिस्पॉन्स देखने दीजिए। मुकेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं, सर प्लीज टेल अस द टोटल कॉस्ट ऑफ टैक्स ऑडिट जीपीटी फॉर अनलिमिटेड एसेस। सर मेरे टैक्स ऑडिट जीपीटी का एसेस आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है इन इंट्रोडक्टरी ऑफर ओनली। इंट्रोडक्टरी ऑफर में ये आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप पे चैट जीपीटी पेड होनी चाहिए। मैं कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मेरी तरफ से अनलिमिटेड है। तो अगर दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में आपको समझाऊं, तो आपको टैक्स ऑडिट जीपीटी की कॉस्ट अलग देनी पड़ेगी आज की डेट में जो भी है, और मंथली सब्सक्रिप्शन चैट जीपीटी की अलग से लेनी पड़ेगी अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं। अगर आप लिमिटेड एक्सेस से अपना गुजारा चलाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स ऑडिट जीपीटी को रिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज कर लीजिए, आपके लिए खर्चा। अब सवाल रहा कि टैक्स ऑडिट जीपीटी के लिए कॉस्ट क्या है सर। बड़े जल्दी, जब ये बीटा फेस में है, इंट्रोडक्टरी टाइम में है, मेरे को बहुत रिसर्च करनी पड़ रही है, बहुत सारे मेहनत इस पे करनी पड़ रही है, तो मैंने बिल्कुल मिनिमाइज कॉस्ट इसके लिए 999 रुपए रखी है। द कॉस्ट इज 999 टिल सब्सक्रिप्शन प्लान पिंच लोन। जब तक ये इंट्रोडक्टरी में है, आपको एक बार 999 रुपए देने हैं, एक बार 999 रुपए देने हैं। जब तक ये बीटा वर्जन से प्योर वर्जन में नहीं आता, आपको कोई पैसा और नहीं देना।
उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान अब यूजर के लिए होगा वो सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कौशल जी पूछ रहे हैं ये खरीद के आ सकते हैं सर, तो मैं आपके हाथ लिंक शेयर कर रहा हूं सर इसको बाय करने का। 1 मिनट मेरे हाथ बने रहिए। जस्ट विथ मी फॉर अ मिनट और just a minute, I am opening WhatsApp of me and sharing link with you. Just a minute, sir. It is taking little bit time to open it. Yes, it is open now. I have messaged you, sir. ये लिंक आपके पास आ गया है, ये लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। द ग्रैब इट नाउ लिंक इज हेयर, कॉपी दिस लिंक और मेल दिस लिंक टू योर मेल ID और open it from that. Pay 99.99, it is immediately active. So don't who want to purchase can purchase right it now, I can assist him. Her buy you will get, click on link, आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा bizgyan.com, www.bizgyan.com। जो लोग लिंक नहीं खोल पा रहे हैं वो bizgyan.com पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड पे कर लीजिए। आप डिजिटल प्रोडक्ट में जाएंगे तो डिजिटल प्रोडक्ट में टैक्स ऑडिट जीपीटी का लिंक आ रहा है, उस पे लिंक को आप बाय कर असेस कर सकते हैं। तो दो वांट टू ट्राई कैन ट्राई, आई एम हेयर टू हेल्प देम। Anup Kumar Grover has purchased
the link. I have received the mail. Grover, are you able to access the same? Hope all of you have enjoyed the session. Till 30th September on every or what time daily one can use. For nearly 30 to 40 minutes, I think you can use, or how many questions you are asking within this 30-40 minutes. और जितना ज्यादा आपको यूज करते रहेंगे, चैट जीपीटी भी आपको कुछ समय देता रहता है, क्योंकि चैट जीपीटी को भी अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. तो कीप ऑन यूजिंग. अगर आपको वो कह रहा है कि 2 घंटे बाद फिर यूज कर लीजिए, तो आप दोबारा यूज कर लीजिए. भाई साहब, गेटिंग माई पॉइंट? तो जितना चाहें आप यूज कर सकते हैं, आपको टाइम ही दे रहा है. जैसे कल आपको मैसेज आ रहा था कि 6 बजे आप लॉगिन कर रहे थे, आप 8:32 के बाद फिर लॉगिन कर लीजिए, तो 8:32 फिर कर लीजिए. अगर आपने 2,000 रुपये महीना नहीं खर्चने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद यूज कर लो. पहले सीखो, और जब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. मैं तो हमेशा कहता हूँ, तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर पार्टिसिपेंट वांट टू आस्क? थैंक्स सर. ग्रिप प्रॉम्प्ट्स. सर, जिन लोगों ने पेड खरीदा है उनको मैं प्रॉम्प्ट्स मेल कर दूंगा, या उनके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे. वो मेरे को हाई लिखें. माई मोबाइल नंबर इज 9355371639. आई हैव रिटन इन दी मैसेज कि मेरा मोबाइल नंबर ये है. आप इस पे कॉल कर, हाई मैसेज भेजिए. जिसने किसी ने भी बाय कर लिया उसको मैं भेज दूंगा. कनका जी कह रही हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच. सुरेंद्र जी कह रहे हैं कौशल साहब, हमारे माननीय कौशल जी. हाय सर, क्या कहना चाहते हैं कौशल जी? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज. यस सर. कौशल जी ने भी हर हमारे परचेज कर लिया है, इनकी मेल हमारे पास आ गई है. अगर इन्हें एक्टिवेशन में कोई दिक्कत आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे. थैंक यू सो मच सर. आपके कॉम्प्लीमेंट से ही है कौशल जी हम आज यहाँ पर. आपका आशीर्वाद है, आप हमारे बड़े भाई हैं. आपकी इंस्पिरेशन से, आपके वर्ड से हम यहाँ से हैं, और आपका मोटिवेशन हम सदा चाहते हैं, ब्लेसिंग सदा चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह सहयोग करते रहे और हमें आगे बढ़ाते रहे. कैलाश गुप्ता जी कह रहे हैं हर कैंडली सेंड लिंक अगेन. कौन से लिंक की बात कर रहे हैं हर? मैसेज वाला लिंक आप कहते हैं तो मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ. लो, मैसेज मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया हर लिंक. Just click on that link. It is clickable link. Just click on that link and buy it from right now here. इसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए, इससे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं. Anyone who is unable to join can get recording in their bizgyan.com dashboard.
आपके डैशबोर्ड में आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां से दोबारा देख सकते हैं और वहीं से कर सकते हैं। और जितने हमारे पेड यूजर होंगे मैं कोशिश करूंगा कि वहीं पे पेस्ट कर दूं ये प्रॉम्प्ट। Yes, this is my contact number 9355371639. If no further query is there or no question is there, no suggestion is there, should we wind up the session with your kind permission? Should I wind up the session with your kind permission?